Warm welcome to everyone in today's class. This side your science sir, your MK sir, going to start a discussion from chapter 12 to end chapter. Okay. चैप्टर 12 के बाद जितने भी चैप्टर आपके साइंस में हैं 16, 18 जो भी है आपको तो पता ही है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके तो जो भी आपके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे एयर अराउंड अस होगा उसमें, या फिर लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपका वाटर से रिलेटेड होगा. ठीक है, वेस्ट वाटर स्टोरी से तो चैप्टर्स नहीं है बट वाटर से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आपको रिवाइज कराया जाएगा. ये आपका लास्ट सीरीज़ है आपके एग्जाम से पहले का, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज device used to break an electric circuit. Okay, device used to break an electric circuit is called, A number is switch. Okay, B number is wire, C number is current, and D number is none. Okay, now the question number 2 is World Water Day celebrated on, that is on, A number is 23 March. Okay, B number is 22 March, C number is 26 March, and that is last option D is 29 March. Okay, now we move to question number 3. The famous line water 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 everywhere, water water everywhere, nor any drop to drink, okay, is called, written by option number A is Stephen, option B is Howard, option number C is Alexander, and option number D is none of these. Okay, now question number 4 is based on figure. Now we revise from device used to break an electric circuit. तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 इज स्विच, ऑप्शन बी इज वायर, ऑप्शन नंबर सी इज करेंट, एंड लास्ट वन इज दैट इज डी नन ऑफ दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज 23 मार्च, बी इज 22 मार्च, सी इज 26 मार्च, एंड डी इज 29 March. Okay, now question number 3 is the famous line water water everywhere nor any drop to drink, written by option number A is Stephen, B is Howard, C is Alexander, D is none of this. Nice, come on, don't write the answer in comment box. Now the fourth one is your favorite, that is question number 4 based on diagram. जो आपके ग्रीन बोर्ड में डायग्राम दिख रहा है उसका नाम बताना है. इफ यू नो एनी पॉइंट रिगार्डिंग दिस डायग्राम तो ऑब्वियसली यू राइट एंड ट्राई टू राइट अ करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट पॉइंट. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग is a technique to save water. B is
waste water. C is catch the water, and D is A and C both. Okay, now we move to question number 6. Question number 6 is no rainfall for a year lead to. Option number 1 is drought. Option number B is tsunami. ऑप्शन नंबर सी इज, जरा सा और रुकेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, अर्थक्वेक. हम समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम है लेकिन प्रेशर नहीं लेना है, तैयारी करना है, ठीक है. अर्थक्वेक. ओके, एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 7. The part of air that is major part, कह सकते हैं major part of air which does not support burning. Option number 1 is oxygen. Option number B is nitrogen. Option number C is CO2 and D is none. Okay, now we write question number 8 based on figure. Question 5 is रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक टेक्निक है, उसका किस में इस्तेमाल किया जाता है? टू सेव वाटर, and B is to waste water, C is catch the water, and D is A and C both. Very nice. Come on. 6 is no rainfall for a year. एक साल तक अगर बारिश नहीं होती है, lead to. A is drought, B is tsunami, C is earthquake, and D is none of this. Very nice. 7 is the part of air. The part of air, major part, which does not support burning. A is oxygen, B is nitrogen, C is CO2 and D is none. Okay, now fourth one, that is 8, very favorite question, based on images from NCERT chapter from 12 to in तक. Okay, इस डायग्राम का नाम बताना है, अगर यूजेस पता है यूजेस लिखिए, पॉइंट्स जो भी आपको पता है इस डायग्राम के बारे में लिखिए. Okay, now we move to question number 9. Don't write answer in comment box. Okay, very nice. Come on, Javed, very good. Burning materials inside the room produce dash gas which may cause death. Okay, the burning materials inside the room produce, option number 1 is oxygen and feel good, that is option number 1. Okay, B is carbon monoxide and feel suffocation, that is B option. Very nice. C is CO2 and suffocation, okay, that is C. Very good. And D is none of these. Very good. Now we move to question number 10. Swachh Bharat mission was launched by dash government. Okay, dash government and when. Okay,
Option 1 is Pakistan 1993. B is India 2001. Okay. C is India 2004. And D is India 2014. And last option, that is E, none of these. Okay, that is question number 10. Okay, now we move to question number 11 based on figure. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 रिवाइज करेंगे। बर्निंग मटेरियल, कभी कभी क्या होता है घर में आग लग जाती है या फिर घर में आप आग लगाते हो, जानबूझ के कुछ चीज़ों को जलाते हो और वहाँ से धुएं निकलने की जगह नहीं रहती है, तो हमें कैसा फील होता है। ओके, देखेंगे ए नंबर इज O2 एंड फील गुड, हमें अच्छा फील होगा, वेरी नाइस। दैट इज CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें O क्या होता है, बराबर होता है, छोटा नहीं होता है, लिखते हैं। एंड सफोकेशन फील होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सफोकेशन, C इज CO2 एंड सफोकेशन फील होगा। एंड D इज नन ऑफ दिस। ओके, दैट इज D। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, विच गवर्नमेंट एंड व्हेन। A is Pakistan in 1993, B is India in 2001, C is India 2004, and D is India 2014, and E is none of these. Very nice. Come on. 11 number is बेस्ड ऑन फिगर। आपके ग्रीन बोर्ड में एक डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम का आप नाम बताइए, कुछ पॉइंट जानते हो उसको लिखिए और जो बातें आप लिखना चाहते हो उसको लिखिए इससे रिलेटेड। ओके, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा और भी अच्छा होगा और आप आगे बढ़ेंगे। कुछ सीखना है, हर एक एग्जाम्स में कुछ सीखना है। जो डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछिए, जवाब पक्का मिलेगा। ओके, वेट एंड वॉच। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग with the help of red worm is called, A number is composting, B is vermiculture, okay, C is vermicomposting, and D number is none of this. Okay, now we move to question number 13. Red worm do not have a दांत, उसके पास टीथ नहीं है। Red worm do not have a teeth, है ना, टीथ नहीं है। दे हैव अ स्ट्रक्चर, उसके पास क्या स्ट्रक्चर है, दे हैव अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज फर्स्ट वन इज लिजार्ड, बी वन इज गिजार्ड, सी ऑप्शन इज डिजार्ड, last one that is D, none of this. Okay, now we move to question number 14. And 14 is aquatic animals. Aquatic animals carry dash oxygen. Option 1 is air, option B is undissolved, option number C is dissolved, and last one that is D, none. Okay, now we move to next question, that is none of these. Okay, very nice. Come on, 15 number is based on figure. ओके, चलते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेड वार्म के द्वारा। तो उसको क्या बोला जाएगा,
A number is compost, B number is vermiculture, C is vermicomposting, and D is none of this. Okay, now we move to question number 13. 13 is red worm do not have a teeth. Red worm के पास teeth नहीं है. They have a structure is called lizard, B is gizzard, C is lizard, and D is none of these. Okay, that is 13. Now 14 is aquatic animals carry dash oxygen. A is air, B is undissolved, C is dissolved, and D is none of these. Now 15 is based on figure. आपको एक डायग्राम दिख रहा है आपके ग्रीन बोर्ड में. इस डायग्राम का नाम बताइए, पर्पस बताइए, यूज बताइए, जो भी जानते हैं सब लिखे. बट फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन द नेम ऑफ दिस फिगर. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स. Burning of plastic causes, A number is asthma, B number is cancer, C number is lungs disease, and last option D is all of these. Okay, that is 16 number. Now question number 17 is 17 है आपका ऑक्सीजन इज नेसेसरी. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ए इज रिस्पायरेशन. ओके, बी इज बर्निंग, सी इज फॉर plants and animals, and D is A and B, and E is A, B and C. F is all of this. ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया. बहुत इजी क्वेश्चन था. इसमें मैंने F तक पहुंचा दिया ताकि आप पूरी तरह से बोल्ड हो जाओ. ओके, आपको बचना है और मुझे क्या करना है, आपको फंसाना है. ठीक है, ताकि आप गलत करो, ताकि आप सीखो. क्वेश्चन नंबर 18 इज बेस्ड ऑन इमेज. एंड 19 इज आल्सो बेस्ड ऑन इमेज. And 20 is also based on image. Now we revise. Burning of plastic. अगर प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज अस्थमा, B is cancer, C is lungs disease, D is all of this. That is 16. Now 17 is oxygen is necessary for. Oxygen किस लिए जरूरी है? For respiration. B is burning, that is B. And C is for plants and animals, and D is A and B, and E is A, B and C, and F is all of this. Okay, now 18 is image based. 18 जो आपका इमेज बेस्ड है, जो आपके बोर्ड में दिख रहा है, उस इमेज को पहचानिए, उसके नाम लिखिए, है ना, और उसके बारे में कोई पॉइंट जानते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं. Now 19 is also based on image. That is question number 19. इस 19 वाले इमेज को पहचानिए और इसके नाम लिखिए. ओके, एक मिनट भैया, ओ भैया एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका इमेज बेस्ड है और इस इमेज को पहचानिए और उसके नाम को लिखिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 20. 20 इज आल्सो बेस्ड ऑन इमेजेस. 20 में भी इमेज आपको दिया गया है. 3 क्वेश्चन रेगुलर इमेज बेस्ड है. इसके इमेज को पहचानिए, इसके नाम लिखिए, अगर कोई यूजेज है यूजेज लिखिए, या पर्पस है तो उसको लिखिए. ओके, नाउ that is the last question and today's class is over. But if you have any doubt then you write a single message in the comment box. reply मिलेगा. कोशिश किया जाएगा आपके पूरे चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए, डाउट्स को क्लियर किया जाए और आप आगे बढ़िए, कुछ सीखिए और कुछ सीख के जाइए. ज़रूरी है कुछ सीखना है. 0 लेवल है, थोड़ा आगे बढ़ाइए, 50 तो 60 लेवल तक ले जाइए, ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाइए और जीवन में कुछ अच्छा करिए, आगे बढ़िए और कुछ आगे करके दुनिया में अपना नाम बनाइए. और भी कोई दिक्कत है तो पक्का बात करिए,
आपके सॉल्यूशन निकाले जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम जैसे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई अदर चैप्टर्स में, इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।